हाउ वी परस्यू आवर फॉरेन पॉलिसी. डायलॉग किसी ने बोला. हाँ, डायलॉग ठीक है. डायलॉग इज मोर इनफॉर्मल वर्ड. फॉर्मल वर्ड इज डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी instrument. There are various instruments of foreign policy, but the most dominant mode is diplomacy. In extreme cases, war. Yeah, so many, but diplomacy, there are so many means. First, we need the most dominant. War is the extreme. Beginning of the war is the symptom of dash dash dash. Beginning of war is the symptom of dash dash dash. Diplomacy. When the talks fail, war begins. Even before Mahabharata, Krishna gave the offer that you give only 5 villages to avoid war. Even in 1761, Third Battle of Panipat, there was attempt for conciliation. Even before attacking Troy, because war always brings tragedies. So failure of diplomacy leads to war, or you can say that beginning of war is the symptom of failure of diplomacy. What is diplomacy? What are the kinds of diplomacy? Diplomacy होती क्या है? Diplomacy कितने तरह की होती है? Diplomacy का जो फीचर है वो कैसे बदल रहा है? डिप्लोमेसी होती क्या है? व्हाट इज डिप्लोमेसी? हाँ ठीक है, बट व्हाट इज द वे? इट इज द डिजायरेबिलिटी दैट यू आर सेइंग, पीसफुल पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज based on arbitration, conciliation, mediation, moderation and so on. होता क्या डिप्लोमेसी? करते क्या है? हाँ, that is the purpose, to serve our national interest, to have harmonious relationship with others. But what exactly diplomacy is? एक डिप्लोमेसी है क्या? ऑर्डिनरी टॉक्स है, ऑर्डिनरी डायलॉग है, या स्किलफुल निगोशिएशन है? डिप्लोमेसी इज नॉट ए simple talk. You're not meeting your friend in an informal manner. When you meet a friend, you talk. Is it diplomacy? That is informal. That may not be for a particular purpose, just for talks. But diplomacy is skillful negotiation. Skillful negotiation in a structured and formal format. यहां भी नॉर्मली, क्योंकि सोशल साइंसेज में हर जगह एक्सेप्शन है. हैव यू हर्ड अबाउट इनफॉर्मल डिप्लोमेसी? वो तो बात है टाइम काइंड्स ऑफ. पहले डिप्लोमेसी क्या है वो तो देख ले, फिर तो देखेंगे काइंड्स ऑफ डिप्लोमेसी. ट्रैक 1, ट्रैक 2, पब्लिक डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, पाइपलाइन डिप्लोमेसी. नहीं, वो भी फॉर्मल होता है, लेकिन दोनों में एक्सटेंट का फर्क है. दैट इज लेस फॉर्मल देन ट्रैक 1 बट मोर फॉर्मल देन अदर. तो डिप्लोमेसी पहले देखते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिप्लोमेसी होती क्या है? स्किलफुल negotiation in a structured and formal format. Skillful negotiation in a structured and formal format with set agenda to promote national interest with harmony. Because whenever you sit for talks, then you cannot say my way or no way. You have to accommodate others' interest as well. You have to accommodate others' concern as well. So it is a skillful negotiation. It's not a simple talk. So we need experts. Diplomacy is not a thing which can be pursued by anyone. Diplomats are, in formal diplomacy, you need experts who have understanding, who have knowledge, experience, who have skill to promote national interest in a harmonious way. So that is diplomacy. Although everywhere there are exceptions. Nowadays we have informal diplomacy also, because in formal diplomacy normally there is joint statement.
Normally, there is joint statement after successful diplomacy, after successful talks, joint statement after successful talks or diplomacy. Modi says talks and terror cannot go together. In relation to which country? Pakistan. Pakistan is the epicenter of terrorism, state sponsored cross border terrorism. We are the worst victim of terrorism. Before 9/11, 2001, it was downplayed as ordinary law and order problem. But after 9/11, when American soil was hit, then they announced global war against terror, acknowledging that it is a global war, global effort, global terrorism. Now no more regional terrorism is there. तो joint statement उसका consequence है. But many times the talks have high hopes and there could not be a joint statement which become the parameter to judge the failure of diplomacy. कई बार joint statement नहीं हो पाती, कुछ issues पे convergence नहीं बैठ पाता, compatibility नहीं बैठ पाती. जैसे पाकिस्तान भी कहेगा we are also fighting terrorism, we are also victim of terrorism after 9/11. Don't use the word cross border terrorism, use the word only terrorism. Don't use the word problem in Kashmir, use the word problem of Kashmir. इंडिया क्या कहती है? There is problem in Kashmir. वो क्या कहते हैं? There is problem of Kashmir. वो क्या कहते हैं? Kashmir is the core issue. First solve it, terrorism would be automatically resolved. हम क्या कहते हैं? Terrorism is the core issue. वो कहते हैं 1/3 Kashmir is आजाद कश्मीर. हम क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. तो डाइवर्जेंस है ना. चाइना कहेगा मैकमोहन लाइन, हम कहेंगे जॉनसन लाइन. नहीं, मैकडोनाल्ड लाइन वेस्ट में, हम कहेंगे जॉनसन लाइन. तो डिप्लोमेसी is skillful negotiation. Skill is a particular way of doing a thing which requires a particular knowledge, experience, tact, understanding. So it's a diplomacy is normally the function of experts, normally centralized, normally behind the curtains. Outcomes are only announced. But G20 का जो 2023 में हुआ, उसमें क्या अप्रोच फॉलो किया गया? सेंट्रलाइज्ड डिप्लोमेसी बिहाइंड द कर्टन और डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लोमेसी, और उसको कहा गया हब एंड स्पोक स्ट्रेटजी. हब एंड स्पोक मींस हब इज न्यू दिल्ली, स्पोक्स regional center. 200 centers where the talks were there, showcasing of our products, one district, one program. Not only involvement of the center but states and districts also in foreign policy for the first time, changing paradigm, changing nature. तो डिप्लोमेसी ये समझ में आ गया क्या है डिप्लोमेसी? Diplomacy is the most important instrument to pursue national interest, to conduct foreign policy, and failure of diplomacy leads to wars. First differences, if don't nip the bird, then differences become divergence, then divergence become dispute. Legal jab ho jaye to dispute. If it is not resolved again, then dispute will become conflict, and if conflict are not controlled, then conflict will become war. War is the extreme. So diplomacy help in not allowing the differences to convert into conflict or disputes or war. So diplomacy, in language of our foreign minister in his book Why Bharat Matters, he says that diplomacy needs both chemistry and credibility. He used the word chemistry and credibility because whenever you write the answer in UPSC, it is better to use those languages which is used by the incumbent foreign minister, particularly when he is expert. He has worked in foreign office for so long. He's not a politician. So chemistry and credibility. Chemistry. What is chemistry in diplomacy? Chemistry is harmony, synchronization, to act in concert based on shared values, based on convergence. And credibility is, what is credibility? Capacity plus effectiveness is credibility. When you send your diplomats, unless they are being trusted, they cannot do their work. Whatever they say, other side must trust it. They must have credibility.
there must be demonstration of capacity and effectiveness both. Diplomacy without credibility will not succeed. Howsoever time and energy and diplomatic effort you allocate, it will not succeed without credibility and chemistry, harmony and convergence. So the skill, जब convergence interest का है ही, तो skill या experts की जरूरत क्या है? Diplomacy is an art of finding areas of convergence, deepening areas of convergence, and to doing away with the areas of divergences. So no diplomacy is possible in case of complete convergence and complete divergence. अगर complete convergence है तो diplomacy की जरूरत है. फिर किस चीज की बात, किस चीज का negotiation, किस चीज की bargaining? Bargaining word I am deliberately using because in politics, whether it's domestic politics or international politics, it is integral part. Bargaining, give and take, reciprocity, mutuality, complementarities, credibility, chemistry, accommodating each other's concern, ये normal है. So no relevance in two cases. First, complete convergence, तब जरूरत ही नहीं है जब complete convergence है, और complete divergence. लेकिन these are extremes, they never happen. These extremes are being deliberately discussed to understand the midpoint. कभी भी ऐसा नहीं होता कि complete convergence हो या complete divergence हो, लेकिन skill किस चीज की है? To promote what? Convergence. Convergence को promote करना और divergence को कम करना या खत्म करना या eliminate भी करना. And you know, politics has immense potential of conflict resolution because of flexibility, because of mutuality, because of tolerance, accommodation. Why political science is called master of all sciences? क्यों कहा जाता है? Why it is said that politics has potential to accommodate even diagonally opposite interest and ideas? Why it is said? क्योंकि इसमें flexibility है, इसमें mutuality है, इसमें tolerance है, इसमें accommodation है. Can you go for legal solution of any complex problem or political solution? Why we say political solution? लॉ के अनुसार तो वो कहेंगे भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने हमसे भी साइन किया, ये हमारा लॉ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और लॉ के अनुसार हमारे लॉ कहेंगे कश्मीर इज इंटीग्रल, इज पार्ट ऑफ इंडिया, शेड्यूल you can see 7th constitutional amendment 1956 schedule 1. Laws are fixed, factual, no scope of flexibility, no scope of accommodation. तो ये स्किल डिप्लोमेसी की. और उन्होंने एक और वर्ड यूज किया, डिप्लोमेसी इज बोथ स्वॉर्ड एंड शील्ड. डिप्लोमेसी स्वॉर्ड भी है और शील्ड भी है. कैसे? Have you heard about coercive diplomacy, pressure tactics? Have you heard about? America often use diplomacy as sword to leverage its national interest, and shield for security, protection, defense, survival. So diplomacy is both sword and shield. Normally developed countries, this element is more. Powerful countries, poor countries or weak countries, this element is more. Extent may vary, but both are part of it. Extent अलग अलग हो सकता है सिचुएशन के अनुसार, कंट्रीज के अनुसार, उनके कैपेबिलिटीज के अनुसार. So this diplomacy is clear. Foreign policy. Now what are the kinds of diplomacy? Now I am coming to your point. कितने तरह की डिप्लोमेसी होती है? Most dominant is formal diplomacy that I have discussed. जहां पे क्या होता है? Formal, structured, agenda based, joint declaration after talks, where only agenda is being discussed, no new issue is being there. But what we have seen that these have certain limitations. When head of the governments meet, then certain new issues, current issues, or those issues which require approval at the highest level, that is also coming. So
वो है इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। सुना है कोई एग्जाम्पल? Any example in Indian foreign policy? Can you give any example of informal diplomacy in our foreign policy? नहीं नहीं, वो तो अलग है। सोची समिट, मामलपुरम, वुहान समिट, सुना है ये? 2018 में सोची समिट। सोची कहां पे? रशिया। रशिया में, जहां पे पहली बार रशिया का ईस्टर्न पार्ट व्लादिवोस्टॉक में हुआ, ना कि मॉस्को में। नॉर्मली डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन टेक प्लेस इन कैपिटल, बट व्हेन you need to go extra mile, you need to go further, you need to further deepen and diversify with more political approval at the highest level, then तो सोची डिप्लोमेसी सुना आप लोगों? व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक कहां है? मॉस्को वेस्टर्न में, ईस्टर्न पार्ट में। तो न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन रशिया के, इंडो रशिया के बीच में। 5 एरियाज आर ट्रेडिशनल एरियाज। पॉलिटिकल ट्रेडिशनल में आएगा, डिफेंस मिलिट्री ट्रेडिशनल में आएगा, स्पेस ट्रेडिशनल में आएगा, न्यूक्लियर ट्रेडिशनल में आएगा, और कॉम्बैटिंग टेररिज्म भी ट्रेडिशनल में आएगा। लेकिन न्यू एरियाज क्या हो गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सी एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक्स, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कनेक्टिविटी, मुंबई मॉस्को कनेक्टिविटी, नॉर्थ साउथ डोर कनेक्टिविटी इंटरनेशनल। तो ये नए आ गए। तो ये कहां से आए? सोची डिप्लोमेसी। इसी तरह से डोकलाम, आफ्टर डोकलाम, स्टैंड अप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 2019 में पहले वुहान, और फिर मोदी जी ने शी जिनपिंग को कहां बुलाया? न्यू दिल्ली में या मामलपुरम? मामलपुरम, हाँ, महाबलीपुरम हिंदी, मामलपुरम। Purpose is also to showcase our cultural legacy, historical legacy of hitherto those areas where the engagement was not there. तो ये इनफॉर्मल डिप्लोमेसी भी है। फॉर्मल तो डिस्कस किया ही हुआ है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सेट एजेंडा होता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट। सो इनिशियल टॉक्स का भी ग्राफ होता है। शुरू में फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स, फिर क्या होता है? फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, फिर फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स, फिर समिट लेवल टॉक। समिट लेवल टॉक क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। समिट टॉक्स, हैव यू हर्ड अबाउट समिट टॉक्स? समिट टॉक्स का क्या मतलब है? दोनों सरकारों के हेड, रियल हेड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ये मोनार्की है तो वहां के किंग। तो समिट लेवल टॉक्स। फिर ग्राफ आगे बढ़ता है तो कहां जाता है? आफ्टर समिट लेवल टॉक्स, then it raises to strategic relation. I discussed a strategic relation yesterday, then alliance. India is not believing in this, but many countries of NATO and Warsaw Pact and others, they do follow alliance politics. हमारी बात अलग है, we don't favor alliance politics. Cooperation with all, alliance with। तो ये ग्राफ है, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, फॉरेन मिनिस्टर लेवल, समिट लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, और फिर अलायंस। These are the graphs that you must understand. So strategic relationship क्या होता है? Strategy word is not originally from political science, it has borrowed from military science. Strategy is action on a chosen course of path. So action is more deepened and more diversified and more not only in bilateral but concerted effort and various global and regional framework. Strategic relationship उसी से होगा जैसे सिर्फ bilateral नहीं है, जिससे ट्राइलेटरल भी है, जिससे रीजनल भी है, जिससे ग्लोबल भी है, तब उसको स्ट्रेटेजिक रिलेशन कहेंगे। ऑल रिलेशनशिप आर नॉट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इंडिया आफ्टर 1991 established strategic relationship with most of the major powers,
सभी मेजर पावर्स के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। सो इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। थर्ड, बहुत सारे काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। हैव यू हर्ड? ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। व्हाट इज ट्रैक 1 डिप्लोमेसी? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट engagement or state to state engagement, government to government. Through formal diplomats. What is track 2 diplomacy? People to people contact. People to people contact. People to people engagement, where there is role of diaspora, there is role of NGOs, yes, other non-state actors like businesses, like multinational companies, like those voluntary organizations, non-state actors. Track 2 डिप्लोमेसी। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, दो ट्रैक की जरूरत क्या है? एक लैंग्वेज, हाँ, जस्ट वन लैंग्वेज आई जिस दिन आप इन लैंग्वेज ऑफ मोदी के लैंग्वेज में ट्रैक 1 वाले तो राजदूत हैं और ये राष्ट्रदूत हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन राजदूत एंड राष्ट्रदूत। राजदूत मींस ambassadors who are formally appointed on behalf of the government. They are Rajdoot, ambassadors. And Indo-American community or the Indian diaspora or people to people contact, are they Rajdoot or Rashtradoot? Rashtra means nation, and nation is formed by people. French Revolution 1789 changed the notion of nation. Before French Revolution 1789, nation was identified by the king. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस समय हुआ उस समय कौन था किंग? लुई 16, और उससे पहले लुई 14। वो क्या कहते थे? आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन was nation identified by the honor of the prince or by the people? People. Democracy in nation is identified by the people, not by the honor of the king. तो ये राष्ट्रदूत हो गया, people to people. When this does not work, or when this is very ticklish or catch 22 or very much complex, जैसे एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी ऐसे सीधा थ्योरेटिकल पढ़ने से। तो यू हैव टू अप्लाई ना, एक्चुअल प्रैक्टिकल example. In case of POK, we are following track 2 diplomacy. Okay, no, I am asking example, concrete example, real example of track 2 diplomacy when there is failure of track 1, although both are simultaneously done. Like जैसे इंडो यूएस के साथ ये भी है, वो भी है, यूरोपियन इनके ये भी है, वो भी है, चाइना के साथ भी ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया के साथ तो कोई बात ही नहीं है इन दोनों में। एंड फ्रांस इज न्यू रशिया इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उनकी तो बात ही छोड़ देते हैं। But when track 1 is not possible, for example, 2001 to 2003, after attack on Indian Parliament, India announced Operation Parakram. Have you heard? Vajpayee government, आर या पार की लड़ाई होगी उन्हें बोला, and mobilization of troops to the border. But America restrained both. Finally, coercive diplomacy, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी। तो 2001 से 2003 तक तो बात ही नहीं हो पा रही थी। दोनों तरफ के लीडरशिप को ये प्रॉब्लम था कि इफ दे टेक इनिशिएटिव दे विल लूज डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नहीं, टेररिस्ट अटैक फ्रेश हुआ है और भारत के प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट करें तो उनका क्या हो जाएगी? उनके आईज, इन द आईज ऑफ द पीपल, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सेंसिटिव, गोइंग आउट ऑफ वे, तो क्या करेंगे फिर? क्रिकेट डिप्लोमेसी। वेरी गुड। 2003 it started with cricket diplomacy because in South Asia cricket is very popular. If you talk about Latin America, 3S are very popular: samba, soccer and storytelling. Soccer वहां पे है पॉपुलर, और हमारे यहाँ क्या पॉपुलर है साउथ एशिया में? क्रिकेट।
So cricket diplomacy 2003, then foreign minister level talks, then finally foreign secretary level talk, then foreign minister level talk, composite dialogue started. ठीक है, तो ये तो दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, लेकिन कई बार ये नहीं, इसका स्कोप नहीं होता है. जैसे फॉर्मली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इनवाइट पाकिस्तानी लीडरशिप, तो बेनजीर भुट्टो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केम टू एड्रेस फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. वहां सरकार पे कोई ब्लेम नहीं लग सकता कि भाई उन्होंने तो बिजनेस के लिए बुलाया. So that is the way in which the track to diplomacy paved the way for creating a public opinion in both sides for talks. Public opinion matters a lot in modern period or not? In determinants of foreign policy, if you study domestic public opinion, international public opinion, there are major variables of shaping foreign policy. So track 1, track 2 समझ में आ गया, formal informal समझ में आ गया. और kinds of diplomacy, public diplomacy सुना है? Earning the goodwill of the people of other country, that automatically pave the ground for success of track 1 diplomacy. अगर वहां के लोग खुद ही कन्विंस हो गए, वहां के लोगों में अच्छा इमेज बन गया, तो सरकारों को भी इंगेज होने में सहूलियत हो जाती है नहीं? हैव यू हर्ड अबाउट 2014 मेडिसन स्क्वायर इंसिडेंट एड्रेस बाय मोदी? सुना है? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप सुना है? सिलिकॉन वैली एड्रेस 2016 क्यों कर रहे थे? इंडो अमेरिकन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे मोदी उनके सॉइल पे. This is what public diplomacy, engaging with the public of the other country to have goodwill, to have a favorable domestic public opinion. Engaging with public of other country to have goodwill, to have image, to have favorable public opinion, to have acceptability, right? Yes, this is a kind of soft power. This is how we diaspora is kind of soft power. Hard power is only military and political power. Soft power is cultural and economic, ideological. They're all soft power. Cost of soft power is far more lesser and durable. अमेरिका ऐसा नहीं है सिर्फ हर जगह डंडे चलाता है. अमेरिका के सॉफ्ट पावर हैं जैसे अमेरिकन हॉलीवुड, अमेरिकन कोक, अमेरिकन KFC, अमेरिकन मैकडोनाल्ड, अमेरिकन सेमेस्टर सिस्टम, अमेरिकन जीन्स, अमेरिकन, हाँ, ये सारे सॉफ्ट पावर हैं. सो इवन क्रूजिंग, फिल्म्स, कल्चर के जितने पार्ट, आइडियोलॉजी, ऑल दीज आर सॉफ्ट पावर. डायस्पोरा, जो भी इकोनॉमिक, ये सारे सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर तो सिर्फ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर, दैट इज हार्ड पावर. जैसे भारत के लिए योगा, आयुर्वेदा, डिप्लोमेसी, क्रूजिन, बॉलीवुड, डायस्पोरा, बहुत सारे सॉफ्ट पावर और भी हो रहे हैं डेवलप. इंडिया इज प्रमोटिंग इट ऑन अ बिग स्केल. हाँ, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, सुना है? इंक्रीजिंग आवर ग्लोबल फुटप्रिंट, SCRI, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, transition technologies, emerging and this technology set, critical and emerging technologies, ये सारे. तो पब्लिक डिप्लोमेसी समझ में आ गया. इसका एग्जांपल, engaging with the people, investing in the people, like in Indo-Afghan relationship. What do you think? That Indo-Afghan relationship has severed after Taliban takeover in 2021? खत्म हो गया या है? What are the 5 pillars of Indo-Afghanistan relationship after 2021? अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नंबर 1, हाँ वो सब एग्जांपल उसी में आ जाएगा. सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. थर्ड, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. फोर्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग. तो दीज आर, ये तो 5 पिलर्स इंडिया एयरबुक में भी दिए हुए. नहीं, फॉर्मल जो भी गवर्नमेंट बुक्स में है वो यू कैन राइट सेफली इन एग्जाम. जो भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा या फिर इंडिया एयरबुक में है या इकोनॉमिक सर्वे में है,
या जो फॉर्मली सरकार ने एक स्टैंड लिया है उसको सेफली यू कैन राइट. So as we say that we have invested in Afghani people irrespective of the change of guard, we have earned goodwill of Afghani people. ठीक है, तो पब्लिक डिप्लोमेसी हो गया. एनर्जी डिप्लोमेसी सुना है? ये इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज एनर्जी हंग्री और नॉट? Because most of the traditional sources of fossil fuel, they're limited. Coal, petroleum, natural gas. So in 21st century, 3 energy, environment and economic engagement. 3 are the top priorities in our foreign policy in 21st century. 3 EQ. Energy. Energy hungry है या नहीं इंडिया? Substantiate this engagement. Energy. Why we are energy? Energy तो जरूरत हर जगह है. But our energy needs have assumed topmost priority in our foreign policy. Why? In 21st century? Why not in 50s, 60s, 70s, even 80s? Population कम था. नहीं, population तो relative उस समय भी ज्यादा था. Relative होता है ना population. Advancing the GDP growth, to accelerate GDP growth, the developmental model is based on intense use of energy and traditional sources of energy are limited. तो इसीलिए energy diplomacy has emerged as key in our foreign policy to reduce our dependence, over dependence on Middle East oil. 18% अब कहां से आता है? साउथ अमेरिका से और वेस्टर्न अफ्रीका से, और पिछले 10 साल में 500% अमेरिका से बढ़ गया. और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इथेनॉल ब्लेंडिंग. इथेनॉल ब्लेंडिंग, यू नो which country is number 1 in ethanol? Brazil. C2H5OH. 20% after oil crisis 1973. इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है. इथेनॉल जानते हैं? C2H5OH, शराब इसी से बनती है. तो इसको ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल में ताकि डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम हो सके, क्योंकि ये तो खेती से आ जाएगी, गन्ने से, तो ये सस्टेनेबल है. लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है विथ मोर कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी उसका पॉल्यूशन भी ज्यादा और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम, उस पर डिपेंडेंस भी ज्यादा दूसरों पे. तो इसीलिए अगर हम ये ब्लेंड करेंगे तो किसानों का भी इनकम बढ़ेगा, हमारी डिपेंडेंस भी कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे और हमारा एनर्जी नीड्स भी पूरा होगा. तो ये ब्राजील करता है. तो अभी ब्राजील और ऑस्ट्रिया ये 2 लीडिंग कंट्री हैं. ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया. इथेनॉल ब्लेंडिंग में. ऑयल क्राइसिस सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट योम किपुर वार? गब्बर कब हमला करता है? होली में. गब्बर होली में हमला करता है. होली में क्यों हमला करता है? तो वैसे ही अरब कंट्रीज पे, बिकॉज अरब मुस्लिम कंट्रीज डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इजराइल इन 1948. So Israel was attacked from all sides in 1948 to wipe it out. JLC countries, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, यमन, इन्होंने अटैक कर दिया. इजराइल ने उन्हें हटा दिया. उनको लगा गलती से हार गए. नहीं, 1956 में इजराइल ने उल्टा, जब सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर्नल नासिर ने किया, तो इजराइल अटैक्ड एंड एनेक्स सिनाई पेनिनसुला. सिनाई पेनिनसुला इज पार्ट इन एशिया. इजिप्ट इन एशिया. Rest of Egypt is in Africa, northeast Africa. Sinai Peninsula in Asia, which was annexed by Israel. फिर हाँ बड़ा पार्ट. तो वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 1867 में फ्रेंच एंड इंग्लिश कंपनीज क्रिएटेड सुएज कैनाल टू कनेक्ट रेड सी विद द मेडिटेरियन सी टू रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर्स. बट दैट फॉल अंडर सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इजिप्ट. तो उस दौरान फिर जाके 2/3 मेजोरिटी से पास किया, तब इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला दी. इजिप्ट को लेने के देने पड़ गए. 67 में 6 डे वॉर. अभी अरब तैयारी कर रहे थे किन पे अटैक करेंगे. इजराइल मेड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बिफोर दे कुड अटैक. दे अटैक, दैट सरप्राइजिंग अरब. और अब तो सिर्फ हराया नहीं और 3 छीन लिया. ये तो नहीं, वेस्ट बैंक छीन लिया जॉर्डन से, गोलन हाइट्स छीन लिया सीरिया से, और गाजा स्ट्रिप छीन लिया इजिप्ट से. बोला ये भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी सॉवरेंटी को रिकॉग्नाइज करो. अब अरब कंट्रीज को लगा ये तो, हम तो इन्हीं को नहीं मान रहे थे, ये तो और छीनते जा रहे हैं.
इनको होली, मतलब उनका होली क्या है, योम किपुर। 73 में उनके फेस्टिवल के दिन अटैक किया, इस दिन भी इजराइल ने इनको हरा दिया। अब अरब कंट्रीज, ऑयल रिच अरब कंट्रीज could not confront with pro-Israeli West, so they used petroleum as political weapon to reduce its production, to punish pro-Israeli West. $1 पर बैरल से बढ़ के $10 पर बैरल हो गया एक साल के अंदर, 10 गुना। दिस इज कॉल्ड ऑयल क्राइसिस आफ्टर योम किपुर वार। इसका तो इजिप्ट ने हाथ खड़े कर लिए, अब हमें नहीं लड़ना है, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो गया। कैंप डेविड टॉक्स, इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री इन 1978 थैंक्स टू द ब्रोकरिंग ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन 1978 जिमी कार्टर, तो इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज्ड। तो इस पे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है गेम्स थ्योरी को लेके। गेम्स थ्योरी में क्या होता है ना, गेम्स थ्योरी हैव यू हर्ड? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ गेम जहां कंपटीशन होता है, जहां कई बार जीतने के बाद भी हार जाते हैं, कई बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं, होता है सर। इजिप्ट को लगा कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अरब मुस्लिम कंट्रीज ने कहा बिट्रेयल के, आउटस्टेड फ्रॉम अरब लीग, तो जीत के भी हार गए, होता है। तो गेम्स, खैर वो थ्योरी आएगा तब, अभी छोड़ देते हैं, अभी सिंपल ही रखते हैं। तो एनर्जी डिप्लोमेसी में तो इतनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक नई चीज है, पहले वी इनविसाज्ड तापी। व्हाट इज तापी? ये कैपिटल लेटर में है, तापी रिवर नहीं। व्हाट इज तापी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एनर्जी गैस पाइपलाइन, आईपीआई, ये भी कैपिटल में है। इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस pipeline, but because of hostility with Pakistan they could not succeed, but the new avatar succeeds in terms in relation to Nepal, Bhutan and Bangladesh. Have you heard about energy pipeline diplomacy? सुना है? नहीं सुना है? मैत्री थर्मल पावर प्लांट सुना है? into Bangladesh, joint nuclear power plant by Indo-Russia effort in Bangladesh, hydroelectricity in Bhutan and Nepal, providing grid facility to Nepal to export electricity to Bangladesh. सुना ये? नहीं पढ़ा? ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें जो, क्योंकि इनसे तो हमारा एक्सीलेंट रिलेशनशिप है ना, बल्कि प्रिविलेज्ड पोजीशन है इनको, इनके साथ तो हमारा रिलेशन को कहते हैं पीस एंड फ्रेंडशिप, और इनके साथ कहते हैं फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। खैर हर रिलेशन का अलग अलग नाम है, वो स्पेसिफिक नाम याद रहना जरूरी है। जैसे रशिया के साथ है तो एसपीएसपी, स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड एंड स्पेशल प्रिविलेज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जापान के साथ क्या है? एसजीएसपी, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और साउथ कोरिया के साथ एसएसपी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। का एक नाम दिया गया है, उस पर्टिकुलर नाम को यूज करना टेक्निकल जरूरी है। उसका सिग्निफिकेंस आई विल डिस्कस हाउ PTA, then FTA, then सिक्का, सिप्पा, मॉनेटरी यूनियन, ऑल दोज। खैर अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं। इसको एनर्जी डिप्लोमेसी क्लियर हुआ, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देयर वाज ह्यूज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग ऑयल टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो एक्सपोर्टिंग पेट्रोल, वी वर स्पेंडिंग पेट्रोल। नाउ गैस पाइपलाइन, सिलीगुड़ी पर बातीपुर गैस पाइपलाइन सुना है? या मोतिहारी आमलेगांव सुना है? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पब्लिक डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी, और कौन सी डिप्लोमेसी है? बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। व्हाट इज बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी? अनफॉर्चुनेटली बुद्धिज्म grew in India but wiped out virtually by 1080, but it spread in Sri Lanka. Sri Lanka का मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? 74% Sinhalese Buddhist, while 18% are Tamils, mostly Hindus. भूटान का मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट, देन तिब्बत का बुद्धिस्ट, देन म्यांमार का बुद्धिस्ट, जापान का, और साउथ ईस्ट एशिया में
कौन सी कंट्री है जहां मेजोरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है? वीएलसी, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, इंडो फ्रेंच और जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया नहीं, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया बुद्धिस्ट हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इज हैविंग ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन का कंट्री कौन सा है? बांग्लादेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। पाकिस्तान चौथे पे, इंडिया तीसरे पे। लेकिन बिफोर 1965 वॉर पाकिस्तान हैड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। खैर, तो रिलीजन का मतलब ये रिलीजियस एफिनिटी इज बीइंग यूज्ड टू लिवरेज एंड टू प्रोमोट आवर नेशनल इंटरेस्ट थ्रू डिप्लोमेसी। क्योंकि यू नीड नॉट टू क्रिएट ए न्यू ग्रुप्स फॉर कॉपरेशन, ऑलरेडी ग्रुप्स आर देयर, already historical, cultural, religious affinity, historical, cultural and religious affinity. It is always an asset in engagement, है या नहीं? जिनके साथ अच्छा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहेगा, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप रहेगा, फॉर जनरेशंस रहेगा, फॉर सेंचुरीज रहेगा, तो उनके साथ हमारा कैपिटल आएगा ना। हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस। जैसे अभी इंडो नेपाल रिलेशनशिप में बुद्धिस्ट सर्किट सुना है? क्या है बुद्धिस्ट सर्किट? कॉरिडोर्स टू कनेक्ट थ्री सिस्टर एग्रीमेंट, तीन सिस्टर भारत की तरफ से, तीन सिस्टर उनकी तरफ से। तो बुद्धिस्ट के लिए कपिल वस्तु एंड बोध गया कॉरिडोर, और रामायण सर्किट जनकपुरी जहां सीता टू अयोध्या, और काशी टू काठमांडू कॉरिडोर। तो रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट और कल्चरल कैपिटल कैप सर्किट। तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट बाय यूजिंग हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, है या नहीं? Because they are already in our psyche, they are already in our memories, they are already in our stories and culture. So that is easier to promote. जो हमारे ऑलरेडी जहन में है उसको प्रमोट करना आसान है या नए कार्विंग्स क्रिएट करना? नेचुरल है। तो जिनके साथ तो पहले ही आती, कोई भी रिलेशनशिप में वी हैव हिस्टोरिकल, कल्चरल रिलेशन विद द कंट्री, ये बात हमेशा आती है, हिस्टोरिकली टाइम टेस्टेड। तो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। और कौन सी डिप्लोमेसी होती है? कोर्स, हाँ, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी उस पर भी आ रहे हैं। न्यूक्लियर तो एक्सट्रीम हो गया, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी होता है। व्हाट इज कोर्सिव डिप्लोमेसी? सुना है कोर्सिव डिप्लोमेसी? एज द नेम सजेस्ट, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी in which engagement is reduced to such a level and tensions are raised to such a level that enable pressure on the other side. Like India followed coercive diplomacy for the time period 2001 to 2003. लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ये लैंग्वेज यूज नहीं करते, वहां पे यूज करते हैं ब्रिंकमैनशिप डिप्लोमेसी। सुना है? ब्रिंक का मतलब क्या होता है? गोइंग टू द एक्सट्रीम एंड, डेड एंड, before beginning of war, not actually waging war, but pressurizing your adversary to give a psychological strength, psychological advancement, and forcing your adversary to compromise, going to the brink. Example, चाइना के साथ लास्ट वार्निंग इन इंडिया, हाँ ठीक है, हाँ लास्ट वार्निंग है, वो भी कोर्सिव डिप्लोमेसी में आएगा। ब्रिंकमैनशिप जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा है। यहाँ पे दे फॉलोड ड्यूरिंग ट्रूमैन, दे फॉलोड ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आल्सो। कैनेडी, वो हाँ, वो दैट इज वो नॉर्थ कोरिया वाले स्किम जो। तो जो ब्रिंकमैनशिप मींस whenever there is tension with other country and whenever you are stronger, then you force your adversary to compromise by going to the extreme end
by going to the extreme end and threatening even war consequences. Warning, हाँ ठीक, warning just before war, not actually waging war, but giving impression of war to your enemy to have compromise. जो अपने दुश्मन को इस कदर किनारे तक ले जाना कि उसे लगे कि अब ये वार कर ही देंगे, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दैट इज कॉल्ड ब्रिंकमेंट। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हाँ, तो इन कोरियन पेनिनसुला इट्स ऑलवेज देयर। इवन किम जोंग भी कहते हैं कि भी हम बटन पे हाथ रख देंगे और हमारा, हमें ज्यादा आर्म फ्लेक्सिंग ना करें, आर्म ट्विस्टिंग ना करें, तो हाँ वो करते ही है। हाँ, तो ये परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने भी न्यूक्लियर बम शरबे बारात के लिए नहीं बनाया है, बट न्यूक्लियर वेपन इज मोर a political weapon rather than actual weapon of use. तो हाँ, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी is being used in a different way by different countries, but nuclear weapons have been used only once in whole human history, and there is nuclear arms race that leads to nuclear diplomacy, because it is a strategic weapon. It is a ABC, atomic, biological and chemical weapon, weapons of mass destruction. तो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन किसने बनाया? यूएस ने। अब उनसे डर के किसने बनाया? रशिया ने 1949 में। अब इंग्लैंड ने सोचा इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंस करें, तो इंग्लैंड ने कब किया? 52 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का। सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन कंट्री यूएसए, फिर यूएसएसआर, फिर यूके, फिर अमेरिका को लगा कि नहीं नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से काम नहीं चलेगा, एटम बम से हाइड्रोजन बम टेस्ट किया। हाइड्रोजन बम टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन thermonuclear test, you know this, which is more lethal than atom bomb. न्यूक्लियर फिशन बेस्ड नहीं, फ्यूजन बेस्ड। और फिर फ्रांस ने भी इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए 60 में किया। फिर जब इंडो चाइना वार के बाद रशिया चाइना रिलेशनशिप खराब हुआ, तो चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 64। अब चाइना के डर से इंडिया करेगी 74, पोखरण 1। अब इंडिया के डर से पाकिस्तान करेगा 80s में। फिर पोखरण 2 भी है, 1 और 2, 98 में चगाई हिल टेस्ट। इंडिया पोखरण 2, चगाई हिल टेस्ट, और 2007 में नॉर्थ कोरिया। दिस इज द क्रोनोलॉजी। समझ में आया क्रोनोलॉजी? नहीं आया? सबसे पहले किसने किया? 45। फिर उनके डर से इन्होंने किया। अब इनका ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, भले नाटो में है तो क्या हुआ, ये तो पास में है ना, ये तो बहुत दूर है, तो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। वन ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज डिटरेंस। डिटरेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। व्हाट इज डिटरेंस? डिटरेंस क्या होता है? टू इंटिमिडेट अग्रेसर, टू रिस्ट्रेन अग्रेसर based on the consequences. Your aggressor would be restrained because of your capability. China is more restrained after Pokhran 2. India is more restrained in relation to Pakistan after 1998. Indian armed forces were strictly ordered not to cross LOC. उससे पहले तो क्रॉस कर जाते थे, 65 में क्रॉस कर गए, लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर के पास तक। 71 में क्रॉस कर गए थे, लेकिन 1998 के जो ये है करगिल, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन नॉट टू क्रॉस। तो हाइड्रोजन बम टेस्ट यूएसए ने कर लिया यहाँ, फिर 60 में फ्रांस ने कर लिया, 64 में चाइना ने कर लिया, फिर 74 में इंडिया ने कर लिया, 80s में पाकिस्तान ने कर लिया, और 2007 में, 2003 में तो नॉर्थ कोरिया बाहर आ गया सीटीबीटी से, एंड 2007 इट कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। So nuclear weapons, we see arms race because you cannot leave your security at the mercy. Nuclear deterrence. Nuclear deterrence जानते हैं क्या होता है? nuclear deterrence what
nuclear capability will restrain your enemy, stronger enemy, from attacking on you because of retaliatory attack which will destroy both of them. तो deterrence होता है, nuclear deterrence. In security, deterrence means preventing your adversary or enemy or other country from attacking on you because of your nuclear capability. इंडिया ने न्यूक्लियर पोखरण 2 क्यों किया? मेनली थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ और मेनली थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से तो हम आगे ही है ट्रेडिशनल वेपन, बिना न्यूक्लियर के भी जीत हरा देंगे उनको, हराया भी है. लेकिन चाइना से अगर ट्रेडिशनल वेपन से लड़ेंगे तो हारेंगे जीतेंगे? हारेंगे पक्का. तो द देन प्राइम मिनिस्टर सेड विदाउट नेमिंग चाइना that in wake of deteriorating security environment, India has conducted 3 nuclear tests because of the threat from north. That was the language. Threat from north means threat from China. Threat from Pakistan नहीं, क्योंकि चाइना आगे है और वो बोलेंगे ट्रेडिशनल वेपन से लड़ेंगे तो हरा ही देंगे फिर. तो इंडिया नीडेड न्यूक्लियर वेपन टू डिटर चाइना फ्रॉम अटैकिंग ऑन अस बिकॉज ऑफ मैड. मैड मीन्स म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन. सुना है मैड? ये मैड कैपिटल में है, पागल वाला एमएडी वाला क्या? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. Because nuclear attack will invite nuclear retaliation. तो nuclear deterrence, you deter your enemy from restraining your enemy not to attack. इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? इसमें टेक्निकल ये है, डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस के 2 पार्ट होते हैं. फाइनाइट डेटरेंस, जिसको इजी लैंग्वेज में, ये तो मिलिट्री साइंस का लैंग्वेज है, मिनिमम डेटरेंस, और एक है इनफाइनाइट डेटरेंस, मैक्सिमम डेटरेंस. इसको समझने के लिए थोड़ा सा और एलाबोरेशन चाहिए. टारगेट्स 2 तरह के होते हैं, काउंटर वैल्यू टारगेट, काउंटर वैल्यू टारगेट, काउंटर हार्ड टारगेट. सुना है? काउंटर वैल्यू टारगेट मींस civilian establishment with immense economic value, immense economic resource. चलिए एक टफ लैंग्वेज हो गया, सिंपल लैंग्वेज में. अमेरिका के पास 1945 में ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे या 2 ही थे? 2 ही थे उस समय. तो उन्होंने काउंटर वैल्यू टारगेट को टारगेट किया या काउंटर हार्ड टारगेट, मिलिट्री बेस को टारगेट किया या इकोनॉमिक बेस को टारगेट किया? क्यों? हिरोशिमा एंड नागासाकी were not military bases of Japan, they were economic base of Japan. When you have lesser number of nuclear weapons, it is meant for this, not for this. India goes for minimum nuclear deterrence or maximum nuclear deterrence? Minimum nuclear deterrence. So this will be meant to target Beijing or Shanghai or to target military base of China, Shanghai or Beijing, because military bases are meant to be sacrificed. Military base 1 2 3 4 उड़ा भी देंगे, तो that will not restrain leadership, that will not restrain them. But अगर बीजिंग उड़ाने की बात हो तो they will be restrained or not. So when you have minimum number of nuclear weapons, it is meant not for hard target, it is meant for value targets. So country follows minimum nuclear deterrence, it is meant for this, not for this. So ये finite या minimum deterrence is there when we need to develop minimum number of nuclear weapons. अभी तो एक estimate अलग आ गया, लेकिन for the most of the time the number of nuclear weapons with India is more or Pakistan is more? Pakistan is more. India is less. अब थोड़ा अब अंतर आ गया, 2 ज्यादा हो गया.
अभी का करंट में, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई आस्क्ड, एंड न्यूक्लियर वेपन्स विथ रशिया इज मोर और अमेरिका इज मोर? रशिया इज मोर, नॉट सुपर पावर अमेरिका, बिकॉज मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो ह्यूज along with the security checks. तो बेयर लैंग्वेज में, ये तो टेक्निकल ज्यादा हो गया। चाइना कब रुकेगा? जब हम बीजिंग को मारेंगे या तिब्बत के किसी मिलिट्री बेस को उड़ा देंगे? बीजिंग को मारेंगे। और बीजिंग का डिस्टेंस कहां इंडिया से कितना है? बीजिंग एकदम इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में है या नॉर्थ ईस्ट फार? तो कैसे मारेंगे? एयरप्लेन भेज के, हेलीकॉप्टर भेज के, या शॉर्ट रेंज मिसाइल से, या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से, या लॉन्ग रेंज आईसीबीएम से? आईसीबीएम, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विथ रेंज मोर देन 5000 किलोमीटर। हाँ, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है, स्कॉर्पियंस जैसे, राफेल का भी वर्सन है, फिर जो चाइना चक्रा लिया है रशिया से, वो अलग है, वो मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारी चीजें। तो अगर बीजिंग को उड़ाना है, बीजिंग को स्ट्राइकिंग रेंज में लाना है, डू यू नीड ओनली वेपन्स or do you need delivery system and long range missiles? Because without them our nuclear deterrence would be teethless. Teethless का मतलब खाना है दांत नहीं, बॉम्ब है आईसीबीएम नहीं, तो इसका कोई फायदा होगा? तिब्बत को तो उड़ाना नहीं है, बीजिंग को उड़ाना है। Unless Beijing is brought under striking range, they will not be restrained. This is the reason why after 1998 the logical consequence of developing long range missiles, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5, Surya, ICBMs, that is very much natural consequence of it. So ये nuclear deterrence, because we are threatened mainly from north by China, so China would be deterred only through nuclear deterrence. This is important component of our security. ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सारी डिप्लोमेसी हो गई। कोई नई टॉपिक करें या फिर यही आगे बढ़ाएं? डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, केवल एक वर्ड पे डिप्लोमेसी आ जाती है, जैसे हाँ साइबर डिप्लोमेसी भी आ जाती, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी भी यूज करते हैं वर्ड, आईटी डिप्लोमेसी, साइबर डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। मतलब डिप्लोमेसी वर्ड ऐसा है ना कि वो कहीं भी जो भी एरिया ऑफ कॉपरेशन है उसको लेके हो जाता है। या बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है तो रामायण सर्किट डिप्लोमेसी भी यूज कर सकते हैं, पाइपलाइन डिप्लोमेसी भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी डिप्लोमेसी भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये वर्ड हर जगह यूज। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जहां फोकस इकोनॉमी पे होगा। डू नो वी हैव strategic economic relationship with China since 2003. You know this or not? China, which country has occupied our largest part? Which country has caused military humiliation to India? Which country is greatest threat? अभी तक तो 3 फैक्ट ये है, चौथा फैक्ट, which country is the largest trading partner of India? How come this dichotomy? जिससे सबसे बड़ी दुश्मनी है उसी से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ये कैसे? The largest trading partner of India is, अभी का जो फिगर है 130 बिलियन यूएस डॉलर, नहीं, ट्रेड डेफिसिट इज 100 बिलियन, ट्रेड इज 130, जिसमें 100 तो अकेला ट्रेड डेफिसिट है। दिस इज कॉज ऑफ कंसर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, नॉट एज ए ब्लॉक, आसियान, यूरोपियन यूनियन नहीं, एज ए इंडिविजुअल कंट्री द हाईएस्ट ट्रेड ऑफ इंडिया इज विथ चाइना। हाउ कम? कोई कहेगा कि अरे ये क्या है, हमारे साथ चाइना का साथ इतना ज्यादा एनिमिटी है, उन्होंने हमारा वार किया, उन्होंने पाकिस्तान को इतना मदद किया, पाकिस्तान के लिए कहते हैं ऑल वेदर्ड फ्रेंड, फॉर चाइना पाकिस्तान इज ऑल वेदर्ड फ्रेंड। ओबीआर में भी है और कोर्सिव है, डोकलाम है, गलवान है, स्टैंड ऑफ है, टेंशन है, इंटिमिडेशन है, उसके बाद भी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये कई लोगों को सरप्राइज कर सकता है कि हमें तो बिल्कुल स्नैप कर देना चाहिए, हमें तो सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देना चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को एकदम नो एंट्री कर देना चाहिए, चाइना पे कस्टम वॉल लगा देना चाहिए। नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है? स्ट्रेटेजिक, मैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विथ चाइना, पहले पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर सिंस 2003। हाउ कम? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हाउ यू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप, दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, दिस
duality of competition and coexistence in the language of एस जयशंकर। उनका लैंग्वेज में जो है, मनमोहन सिंह ने भी कहा था, और रिलेशनशिप विद चाइना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इन्होंने बोला उसी लैंग्वेज को दूसरे बार, डुअलिटी ऑफ कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टेंस। सो कंपटीशन तो है, कंटेस्टेशंस भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, डाइवर्जेंसेस भी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्यों बन गया? या क्या इंडिया ने मिस्टेक कर दिया? क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे का थॉट, what is the philosophy behind this? I have just put a fact before you, just for your thinking, brainstorming. Logic of globalization and functionalism. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लॉजिक ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। अब इसको एक्सप्लेन, एंड फंक्शनलिज्म, ये टेक्निकल लैंग्वेज है दैट एक्सप्लेन्स दिस रिलेशनशिप। पहला है हाइपर ग्लोबलाइजेशन। What is hyperglobalization? The intensification of trans-border connectivity with the freer flow of goods, services, capital, technology, labor, ideas, best practices, everything. So that is engined by modern technology. So is globalization resistible or irresistible? Is it inevitable or uninevitable? Globalization is inevitable, irresistible. So the things which are irresistible, it is better to manage rather than to resist. It is based on comparative advantage of production. ये थोड़ा टफ लैंग्वेज होगी। हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड किसी के बटन से नहीं चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ये कनेक्टिविटी से चल रहा है, ये मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से चल रहा है। अगर हमने इनको ब्लॉक करने की कोशिश की और इकोनॉमिक एंगेजमेंट को हॉस्टेज बना दिया पॉलिटिकल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट का, तो अदर रीजन्स will take advantage of globalization and we will not be able to. We cannot wait for political and boundary issues to be resolved to have economic engagement which is based on logic of globalization. चलिए करके देखते हैं, उलट के देख करते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको उलट के देखते हैं। नहीं, अगर प्रकाश समझ में नहीं आ रहा है तो अंधेरे पे जाते हैं, खुशी समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा गम में जाते हैं, होता है ना। लिबर्टी समझ में नहीं आती है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं, होता है ना। ऐसा कॉन्ट्रास्ट से उलट के सीखना, निगेशन ऑफ निगेशन मेथड, उल्टा करके देखते हैं इसको। ये नहीं करते हैं, कस्टम वॉल लगा देते हैं, एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। क्या होगा? कनेक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी। अगर फॉर्मल लीगल रूट बंद कर दिया और वैक्यूम है तो एयर तो अपने आप आएगा, डिमांड है तो सप्लाई अपने आप आएगा। लीगल रूट ब्लॉक कर दिया तो इलीगल रूट से आएगा, बिना टैक्स दिया आएगा, स्मगलिंग से आएगा, स्मगलिंग को ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, डंपिंग थ्रू नेपाल इंक्रीज हो जाएगा, डंपिंग थ्रू रीजनल ट्रेड, आरसेप में तो इंडिया नहीं है, बट अदर मीन्स विल इंक्रीज and we will not be able to reap the benefit of hyperglobalization in spite of trade deficit, cost of transportation, you are right, or the logic of trade and commerce, geographical proximity, complementarities, their hardware, our software, in many areas, our telecom sector also, our energy sector also, Chinese presence is partly beneficial, there is no substitute, their products also. तो एक तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन और दूसरा फंक्शनलिज्म। व्हाट इज फंक्शनलिज्म? if government to government engagement is weak, we promote other people to people, trade to trade, economic to economic, culture to culture, so that the engagement is multi-layer, so that the cost of breaking this by waging war will be huge. We are increasing the cost of wars and warmongering by China. ये लैंग्वेज समझ में आया? नहीं आया? ये फंक्शनलिज्म का एक थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, कि जिस देश के साथ हमारा रिलेशन खराब हो तो उसके साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ाना, ताकि अगर वो कल को वार करे तो उसको बहुत घाटा हो। तो इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ वार एंड वार मॉन्गरिंग। फंक्शनलिज्म मींस अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप सिर्फ गवर्नमेंट का है तो एक ही डोर है रिलेशन का, लेकिन मल्टी डोर, डोर वो वाला डोर नहीं, डोर वो वाला मल्टी, अगर कई डोर हैं रिलेशन के
तो ये ज्यादा मजबूत होगा या सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला मजबूत होगा? यही तो वुड्रो विल्सन ने कहा। दिस इज व्हाट इज वुड्रो विल्सन फॉर्मूला इन 1918 14 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ पीस। यही उन्होंने कहा, आप अपनी कंट्रीज की इकोनॉमी को, कल्चर को, पीपल को इतना कनेक्ट कर दे कि इंसेंटिव फॉर पीस इंक्रीजेस, इंसेंटिव फॉर वॉर, कॉस्ट ऑफ वॉर इंक्रीजेस, एंड थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, पीस बाय पीसेस। और इस तरह से दिस इज द लॉजिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल। समझ में आया? बेयर लैंग्वेज में कहें तो आज के डेट में चाइना 1962 में सिर्फ नेहरू को लेसन पढ़ाने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया। आज ढोकलाम हो गया, गलवान हो गया, इसके बाद भी चाइना अटैक नहीं कर रहा। इसके बाद भी मोदी और शी जिनपिंग बात कर रहे हैं। इसके बाद भी बाय एंड लार्ज पीस एंड ट्रंक्विलिटी है बॉर्डर पे। क्यों? लड़ने से घाटा बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट फंक्शनलिज्म इज। वी ट्राइड फंक्शनलिज्म विद पाकिस्तान एज वेल, बट दैट कुड नॉट सक्सीड। But with China, it has greatly succeeded, and with many countries who have very bad relationship. यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़े नहीं थे क्या? पूरे हिस्ट्री को अगर उठा के देख ले तो इंग्लैंड हमेशा सेंटर ऑफ जेलसी रहा। नेपोलियन हो, चाहे बाद में हिटलर हो, उसके पहले ट्रीटी ऑफ उट्रिच देखेंगे तो हॉलैंड उससे पहले, कि रोमन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, 30 इयर्स ऑफ वार, ब्लडशेड, बैलेंस ऑफ पावर, वो आपस में लड़े नहीं थे क्या? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कभी कैथोलिक वर्सेस इस पे प्रोटेस्टेंट पे, कभी रॉयलिस्ट वर्सेस पार्लियामेंटेरियंस पे, कभी डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की पे, कभी नेशनल इंटरेस्ट पे, कभी इंपीरियलिज्म पे, कभी नेपोलियन पे, कभी हिटलर पे लड़े, खूब लड़े। तो ये यूरोपियन यूनियन कैसे बन गया? वो जितना लड़े, क्या उतना भारत और पाकिस्तान लड़े? जितना उन्होंने लड़ा आपस में, उतना क्या भारत पाकिस्तान लड़े? बिल्कुल नहीं लड़े। गिन चुन के कितने वार हुए? एक फॉर्मल 65 में वार हो गया और दूसरा 71 में हो गया। बाकी तो दो इनफॉर्मल ही है। कारगिल वाला तो इनफॉर्मल ही है और 48 व 47 वाला भी इनफॉर्मल है। अगर दोनों को भी जोड़ दे तो 4 ही तो हैं। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कितने वार हुए? यू कैनॉट काउंट, you cannot count. In spite of that, after Second World War, they joined hands. Common market, then common currency, now common parliament, now European Court of Justice, European Commission. ये कैसे हो गया चमत्कार? यहां तो नहीं हो रहा है। They understood the logic of functionalism, that in spite of historical wars, we must take full advantage of the logic of hyperglobalization and functionalism, which will be ultimately in our national interest by sinking our enmity in past. This is maturity.